At the same time, Professor Uttam Kumar Sharma ji, he is ex-registrar our Uttarakhand Ayurveda University, and presently he is a professor head in the Department of Panchkarma, Gurukul campus, Haridwar. So we are having two disciplines persons, one from Shalya and the other one from Panchakarma. And the way Acharya Charak and all his predecessors described these two disciplines and compiled in Charak Samhita. So according to Charak Samhita, principles of practice in special reference to Shalya surgery and also in reference to the say Panchakarma, because Siddhi Kalpa is there, so there is a clear demarcation. But at the same time, when he says that Tattva Dhanvantiyanam Adhikar Kriya Vidhu, so here comes the person from Dhanvantri discipline. So he will narrate the specific knowledge available there in Charak Samhita. So we'll be lucky enough to have this great knowledgeable persons, distinguished guest speakers, to increase our knowledge, and we'll feel highly obliged as far as the IRES platform is concerned. So I thank and welcome all the guest speakers along with the dignitaries who have joined our Dr. Vipin Pandey is also there. Indu Menon is there. All the persons who have joined. So Domaji is also here. I welcome all distinguished dignitaries of our platform. With these words, I again welcome and pay respect to our guest speakers as well as our other platform dignitaries. So thank you so much, and over to Professor Pan Sharma for further proceeding. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you very much, sir. Today, in our webinar on 13th day and 936th webinar, the topic is same, Charak Samhita, Principles for Practice. And we are glad to welcome respected Priyadarshini ji on the platform, who will guide us that in Charak Samhita, the Shalya Karma is also elaborated. That is not only the medicinal book, but surgery is also highlighted there. So I welcome K.C. Priyadarshini Gunaratne ji. Welcome for Yakkal, Sri Lanka. Welcome, madam. Now stage is yours. Everyone, sir. Good evening. Yes, your screen is visible. You can go for slideshow. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good evening, all of you, and I welcome you all for my presentation, all the dignitaries on the dais and all, off the dais, and all who are the respected participants in the audience. So while we are talking about that Charaka Samhita, we all know that is mostly using as a Kaya Chikitsa textbooks, but as a surgeon, we can gain a lot of things from the Charaka Samhita. So while we are practicing, we have taken a lot of guidance from Charaka Samhita. So I wanted to just explain and exchange my experience and knowledge with all. In Charaka Samhita, we can take a lot of information for Vrana, then Arsha, Parikartika, Prihodara, Mutraroga, Prameha Pidaka, Bagandhara, Visarpa, Gulma, Granthi, and etc. But today I'm going to highlight this much things. While we are considering about that Vrana, especially we all know that Trividha Pariksha has mentioned in Charaka Samhita, that is mainly Darshana, Sparshana, and Prashna. But I'm not going to detail that much thing, but we all know that's why. But Varana Pariksha, Vrana and Vranita, most of the times in other all sciences, they are all considering on the Vrana, that means on the wound. But here we are considering about Vranita, that means Vrana patient. Then Sparshana means that we have to see whether that condition is Ushna, Shita, Mrudu, Katina. Likewise, what are the local examinations and as well as the patient's changes on the body. And Prashna means, and we have to inquire all the hetu and other feelings what they are getting, that Vedana,
then daha, likewise. Then what are the duration of the things, likewise. Then that Charaka has mentioned that Ashuddha Vrana Lakshana. That means while we are treating a patient, we have to see the stage of the wound. So that Ashuddha Vrana, that means in Susutta we are telling, especially in that is Dushta Vrana. The same way we have to see whether that Vrana having that foul smelling, then discoloration, painful or excess discharge. This kind of wounds we have to treat first for make it's a Shuddha Vrana. So then in Charaka Samhita and both the Susutta also, they have mentioned that places where the wounds can occur. But some changes we can see here. Mostly both are telling Twak, Mamsa, Sira, Snayu, Asti, Medas, Antrasraya and Marma. Then that complications of Vrana. While we are treating a wound, that doctor must be consider about the complication of the Vrana, because it may be cause the patient's life. So if they are getting Visarpa, Pakshagata, then Apatanaka, Moha, Unmada, Vranaruja, then Kasa, Chardi, etc. We have to consider about the patient's condition thoroughly, more than the local condition. Then Vrana Lakshana. What are the Vrana Lakshana? We can consider. Then Vataja, especially that Charaka have mentioned that Vrana color, that shower, then Vartma, that means Katina and Sabda, Vedana, Tivra, Ruk and Spushna, then Strava, that Manda Strava, likewise. Then in Pitha wounds, they have mentioned Strava is Puti, then Anyalakshana, Trishna, Moha, Jara, Sweda, that other symptoms they are getting on their body. Then if you coming to that Kafada wound, then their color may be Pandu, then Vatma may be Snigdha Guru, Bahu picture, likewise. Then Strava, Alpa and some Kleda. Then Anyalakshana, Manda, Vedana and Chirakari. So while we are considering about Lakshana of Dushta Vrana, especially Charaka have mentioned some of symptoms that they are telling Swetattva, then Avasanna, then Chayavatta, then Rakta, Krishnatva, Atiputi, likewise. The surgeon or the physician must be considered about this Dushta Vrana Lakshana also. Then Vrana Strava, especially Charaka have mentioned various kind of Strava, that Lasika, Jala, Puya, Astruk, Aruna, Ardra, Kashya, Neela, Ruksha, likewise. From this we can understand what kind of wound and what are the cooperated that the places and what are the organs, what are the other things involved with the wound. With this, we can understand and we can do the proper treatment. Then Vrana Gandha. According to that Vrana stage and that Vrana type and other all, because of that, they will have various kind of Gandha that Charaka have mentioned nicely. Maybe Pitha, Thaila, Vasa, Puya, Rakta, Shava, Amla, Putika. Likewise, Gandha can be happen. Lakshana of Shuddha Vrana. Then color of wound is reddish black, then moderate pain, then neither elevated or depression from the skin. Then while we are considering about what are the treatments they are given in Charaka Samhita, because the same time Susutta has mentioned 6 time, that means Shashti Vidopakrama. Here the Charaka Acharya has mentioned 36 karma. Here also mentioned that a lot of Shodhana Thaila, Ropana Thaila, then Shodhana Grata, then Patyahara especially, then Shara Karma, Agni Karma, Dhupalepa, then Ropana, Loma Paharana, likewise. They have given that Shodhana, then Patana, Vyadana, Chedana, likewise. They have given
36 methods according to the wound and the patient. We have to use all the methods in rational way, then we can cure the wound. Then Shadvida Shastra Karma. In Susuta they have mentioned Ashtavida Shastra Karma, but here they have mentioned Shadvida Shastra Karma, including Patana, Vyadana, Chedana, Lekana, Prachana and Sivana. But some are equal, but some are having quite different. Then what are the Vrana? Patya Patya. Charaka have mentioned Nati Shita and Nati Guru and Nati Vidahi foods, and especially mentioned that Divasapna is Patya for the patient. Then as Apatya, they are telling that Lavana, Amla, Katu, Ushna, Guru, Ahara is not good, and Maituna Sevana also as a Apatya. Then next chapter, we are considering about Arsha. The Arsha, especially that Charaka have given 3 classifications according to origin, then Srava and Dosha. Here, especially they have mentioned Sahaja Arshas in 2 types, Matruja, Pitruja, Upachara and Purva Janma Prut. Because always we are thinking because of their Purva Karma, some are having that Arsha. So, here that Susuta has considered that thing, and Srava. Because of that Srava, they have mentioned 2 types of Arsha, that is Shushka Arsha and the Sravi or Ardha Arsha. We can explain them with their dosha even. And in doshaja way, they have mentioned 6 types, that Vataja, Pittaja, Kapaja, Dvandaja, Tridoshaja and Sahaja Arsha. Then Arsha, what are the what are the complications? That means the patients having that Pura Rupa, that Vishtabha, then Daurbalya, Kukshi Atopa, Karcha, Udgara Bahulya, and Udara Roga. Likewise, that patients may be getting Arsha as Pura Rupa, because some are special Rupa and some are having general Pura Rupa. So because of that, we have to consider about this Pura Rupa while we are treating the patient. Then what are the common site for the Arsha? We are normally getting a lot of patients that good Arshas and that one Russian Arsha, but the same time that Charak has mentioned, they are getting Nabi, Mukha, Pada and Hasta even. Because we can correlate with that Pada Arsha just like Shiraja Granthi even, because that 2 treatment mostly going equal way for that Arsha and the Shiraja Granthi even. Then Sadhya Sadhyata, especially that Charak have mentioned Pushta Sadhya and Sukha Sadhya Arsha. If that Arsha started from Dvanda dosha, and if it is located in the second anal sphincter and it is older more than 1 year, it must be mostly Kushta Sadhya. And Sukha Sadhya, that maybe they have started with Ekaja dosha and mostly located in external anal sphincter and less than 1 year origin. Because of the Sadhya Sadhyata, we can give the confident to the patient whether we can cure the patient or what are the things they have to do. Then what are the treatments mentioned in Charaka Samhita for Arsha? That is Shastra Karma, CHARAK Karma and the Agni Dahana. That means almost same to Susuta Samhita, but in Susuta Samhita they have mentioned that Aushadha Chikitsa, but here not mentioned that thing. Then Parikartika Nidana. That also specially mentioned in Charaka Samhita. What are the Nidana? That is Tikta, Ushna, Kashaya, Ahara, Pana, excessive use, then Alpa Bhojana, then Vegadharana, excessively, then excess Shodhana therapy during a season or other seasons, especially because of excess Vasti and Virechana Karma, they may be getting Parikartika. Then
what is the Parikartika Rupa? That is cutting pain, groin, flank, and scale region. Then pain in para-umbilical region. Maybe they be getting constipation also, and passage of scanty stool may be getting. Then what are the chikitsa for then Parikartika? That also mainly two. That one is some sodhana. Under that, we have to ask the patient to do langana, then pachana, then rukshana, ushna, lagu, bhojana. Then amajirna anubandha deshu. That means we have to ask that patient to use shara, amla, madhu. Then must take brunghana and madhura dravya in emaciated patients. That means because of that excess panchakarma, if they have got that parikartika at that time, we have to do the brunghana karma. For that, we have to ask that patient to use that madhura dravya specially. Then especially medicine in Vataja Arshas, then Sarpi preparation with the Adima Rasa. Likewise, they have given lot of recipes in Jara. That means if the patient having already with Jara, in that time, they have given that person their chance of having Parikartika. He should consume especially paya of red rice made from decoction of Lakshamala. Likewise, then Kantakari with powder of unripe fruit of Bela, cortex, etc. Then next that Charaka have mentioned that Yakutodara. Again, what are the rupa for that? That Daurbalya, Arochaka, Avipaka, Pipasa, Chardi, etc. Then they may be having Kasa, Shwasa. Likewise, they have given lot of Lakshana. Then especially that Charaka have mentioned what are the sadhya sadhyata of these Udara Roga. According to this, that Vatika is somewhat easy, but that Paitika one, then Kapha, then Pihodara, Sannipata, and Udakodara, they are respectively, they will get serious to treat. Then Priha Vurdi Chikitsa, what kind of Chikitsa we can do for Priha Vurdi? Then Sneha, Sweda, then Vireka Karma, Niruha Basti, Anuvasana Basti, then Sira Vedana we can do. Then what else we can go for this kind of patients? Next we can take that reference for that Mutravaha Shotas Chikitsa. What are the Karana for Mutravaha Shotas Chikitsa? That is Mutrita. Then Mutra Nigraha, then Sheena, then Abhikshata. Then what are the Lakshana while they are having any Mutra Roga? Then that is Ati Shushta, then Ati Baddha, Prakupita, Alpalpa, Bala, Sashula. Likewise. Then what are the Mutra Vahashotas Vikara mentioned in Charaka? That is specially Ashmari, Mutra Gata, Mutra Kricha, Madhumeha, Udakameha, Rukka Shova, Jala Rukka, Puya Rukka, Rukka Beda, Rukka Brashma. Then the Chikitsa they have mentioned same as Mutra Kricha. Then another special one is that Prameha Pidaka. Most of the patients getting Prameha Pidaka in Charaka Samhita mentioned that type of Prameha Pidaka, that means according to the mostly according to their shapes and colors, Charavika, Jalani, Alaji, Vidardi, Kachapika, Sarshapika, Vinata. Likewise, then what are the complications if patients having Prameha Pidaka, that is thirst, cough, gangrene, fainting, hiccup, toxemia, fever, erythema, vital organ infraction. Because if you understand what is the Prameha Pidaka type and the complication, you can mostly save the patient's life as well as the part of the wound where it is situated.
Then what is the prognosis of Prameha Pidaka mentioned in Charaka? Abscess may occur due to vitiated medas without Prameha sometimes. Then Saravika, Kachapika, Jalini having severe pain and serious nature and occurs. Patients having excess kapha and meda. Then Sarasapi, allergy, Vinata, Vidradi dominant by Pitha and occurs in medas less patients. Then Prameha patients having abscess on vital organs, especially shoulder, anus, hands, breast, joints, feet, seldom they may be survived. That means all the things I have mentioned above, they may be survived. And what are the complications they may be getting? Mostly through Shwasa, Moha, Hikka, Mother Jwara, Visarpa, etc. Then Bhagantara Chikitsa also they have mentioned in Swastayu Chikitsa Adhyaya, but not that much mentioned as Sutta mentioned. But Bhagantara Nidana mentioned because of Krimi, Asti, Sukshma, Krimi, then Vyavaya, Pravahana, likewise Utkuta Asana, likewise they have given Nidana, but not that much details given. Then that Visarpa treatment also given in Charaka Samhita, indications, Langana, then Rukshana and Raktamokshana. Then what are the contraindications? That means for the Visarpa treatments, what we have not to do, that Vamana, Virechana and Sneha Karma. Then Visarpa Sadhya Sadhyatavya also mentioned. That is Sadhya, if that Visarpa is started with Kevala dosha, then Asadhya may be Tridosha or Pittaja, Vataja, and Kucha Sadhya, all type of present on Marma. That means if any type of Visarpas situated on Marma, it may be Kucha Sadhya. Then we have to consider about what they have told about Gulma. Especially they have given stages of Gulma. They are giving especially Ama Avastha and Pachamana Avastha. What are the symptoms? Ama Avastha, Guru Katina Sthanastha, then Buddha Mansantara, then Avivarna, then Sthira. Then Pachamana Avastha, what are the symptoms we can observe? Then Daha, Shula and Jwara. Most of the time that Pakva Avastha, we can't see with that all the patients, or they are getting mixed symptoms. Then types of Granthis, that also not getting that much details from Charaka, but they have given Granthi types, that means Vathaja, Pittaja, Kapaja, Medoja, Siraja and Mansaja. Actually here I not that much mentioned some other few things also we can obtain from Charaka Samhita, but I wanted to highlight few things. Because of that, I am going to summarize. Then Charaka Samhita has mentioned about Vrana and Arsha in detail, comparatively with others. Then about Bhagandara, Parikartika, Plihodara, Mutra Roga, Prameha Pidaka, Bhagandara, Visarpa, Gulma, and Granthi Roga has mentioned very shortly, but we can use them in a lot of ways. And while I am concluding, I want to conclude like this way. The explanation given about surgical practice, especially about Roga and Chikitsa in Charaka Samhita, are very practical and useful. Then some of points mentioned in Charaka Samhita have another aspect. That means what they are telling is not mentioned in any other text. So we can use all Charaka, Susutta and other all texts, and we can gain full knowledge of surgical practice. Up to now, I have finished this topic. So thank you very much. Good night. Thank you very much. Excellent presentation and well within time, madam. Thank you very much. Agnihotri sir. Thank you, sir. Thank you, Professor Sharma. Really, Dr. Gurunath made a great effort going through whole of the epic of Charak Samhita, searching out the related surgical related sites, especially emphasized over the Vrana, Arsha, especially Plihodar, Ekadavuladar, and their process, Hetu,
etc., etc., in the way that how much Charak covered the areas. Of course, if the need of surgery takes place, the rest of the portion is being covered by Shishir, Acharya Shishir, as he had been the father of surgery, everybody knows. So, in that way, you described to which extent that these diseases can be put under the conservative treatment. And if they get a good result, wonderful. Otherwise, if these are catches are there, then and surgery is inevitable, then one may go for surgery. So thank you so much for covering the whole of the area, searching out the surgery related, cell related portion. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you very much, madam. Thank you very much. Now I would like to request Dr. Uttam Kumar Sharma ji, Professor and Head Department of Panchkarma from Haridwar. आदरणीय उत्तम कुमार शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट सर. आप म्यूट हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए. नमस्कार सर. अग्निहोत्री सर थोड़ा देखिए ना, अब मेरा बोर्डिंग टाइम हो गया है. हाँ, यस सर, नो प्रॉब्लम. प्रोफेसर उत्तम शर्मा जी, आपका स्वागत है. प्रोफेसर उत्तम शर्मा जी, आपका स्वागत है. आपने वार्ता प्रस्तुत करिए. जी नमस्कार. आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? मेरी आ रही है, आ रही है. यस. आज के इस कार्यक्रम में अभी मैं थोड़ा बाहर था, रास्ते में, तो मैं सुन रहा था. बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा अभी. और आज मुझे इसमें आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर पवन कुमार का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक सीरीज चला रखी है ज्ञान के लिए. और डॉक्टर अग्निहोत्री जी, जो कि लगातार इसमें प्रयासरत रहते हैं लोगों को किस तरह से और आयुर्वेद का ज्ञान और बढ़े. तो आज मुझे चरक संहिता के विषय पर थोड़ा सा बोलने के लिए कहा गया है. तो जितना जो चरक संहिता है वो तो ज्ञान का अथाह सागर है, और उसमें जितना भी आदमी उसमें गोता लगाए, जितना उसमें पढ़े, जितना उसको अपनी प्रैक्टिस में उतारे, उतना ही उसमें और अधिक ज्ञान हमको मिलता जाता है. ये मैंने देखा. और जब भी हम किसी भी रोग की चिकित्सा में या किसी रोग की आवाज आ रही है, आ रही या किसी भी रोग के निदान में कहीं पर हम थोड़ा सा भी संशय होता है और चरक को हम खोल कर देखते हैं, तो बहुत सी चीजें हमको उसमें ऐसी मिलती हैं कि जिनसे हम जो है उसकी चिकित्सा के लिए नए नए सूत्र और सिद्धांत मिलते हैं. तो आज में कुछ जो चरक के की जो विधा है उस पर कुछ सिद्धांतों पर मैं थोड़ा सा जो है ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. उसमें जैसा कि चरक ने कहा है कि षडुपक्रम को जो भी चिकित्सक नहीं जानता, वो चिकित्सा पूरी तरह से नहीं कर पाता है. जैसा कि धातु साम्य को चिकित्सा चरक ने माना है कि धातु साम्य करना है, और उसके लिए एक षडुपक्रम का उन्होंने उसमें एक सिद्धांत दिया. लंघनम लंघनम चैव स्वेदनम स्नेहनम तथा रुक्षणम स्नेहनम चैव जानीते ऐसा ही विषय. ऐसा उन्होंने लिखा है कि 6 उपक्रम जो है, स्नेहन, स्वेदन, रुक्षण और स्नेहन. स्वेदन, स्तंभन, रुक्षण, स्नेहन, लंघन और लंघन, इनको हम किस तरह से अपनी चिकित्सा में अप्लाई कर पाएंगे. वो धातु साम्य करने की दृष्टि से और दोषों को साम्य अवस्था में लाने की दृष्टि से इनका प्रयोग, जहाँ भी आप सिद्धांत को देखेंगे, चरक के सिद्धांतों को, तो उन सिद्धांतों में इनका प्रयोग आपको स्पष्ट दिखाई देगा. और किसी भी औषधि की बात जो चरक के सिद्धांतों में आप देखेंगे चिकित्सा में, तो वो बाद में की जाएगी, परंतु सबसे पहले वो सिद्धांतों पर ही विचार किया जाता है कि हमको व्हाट इज द मोटिव ऑफ द ट्रीटमेंट एंड व्हाट वी हैव टू डू इन दैट कंडीशन.
तो उन चीजों को देखना उसमें जरूरी होता है। जैसे कि हम ज्वर की बात करें तो जो सबसे पहला चिकित्सा का अध्याय ज्वर चिकित्सा बताया सर आपने, तो उसमें लंघन उन्होंने सबसे पहली कंडीशन ये रखी कि आम जो है वो ज्वर का कारण है, जैसा कि उसकी संप्राप्ति में भी कहा गया, नित्याहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाशयाश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदास्यु रसानुगा। तो उसमें लंघन की चिकित्सा को उन्होंने महत्व दिया। अब लंघन पर भी हम अगर विचार करें, सिर्फ लंघन के सिद्धांत पर, चरक का जो लंघन का सिद्धांत है उस पर आप जब विचार करेंगे तो बहुत से रोगों में उसको उन्होंने, और रोगों की बहुत सी अवस्थाओं में उसको अप्लाई किया है। तो चरक में आप देखिए कि वहाँ कंडीशन ये है कि अगर आम है तो वहाँ लंघन कराना आवश्यक है, परंतु वहां पर ये देखने की आवश्यकता है कि लंघन कितना कराया जाए। उसके लिए भी चरक जो है बहुत वैज्ञानिक जो है बात करते हैं, और उसमें कहते हैं कि लंघन की प्रक्रिया अगर आप करा रहे हैं तो वो भी एक सीमा तक कराएं तो रोगी के प्राण का क्षय ना करे। लंघन का उद्देश्य भी इतना ही है। तो लंघन हम सबसे पहले जो चिकित्सा में लंघन उसका प्रयोग उन्होंने किया। इसी तरह से जितने भी और आम की कंडीशंस जो है जिन रोगों में, तो वहां पर लंघन को उन्होंने विशेष महत्व उसमें दिया। जैसे कि आप देखेंगे और जो रोग हैं उनमें प्रमेह है, उसमें लंघन की व्यवस्था को उन्होंने महत्व दिया। इसी तरह से जहाँ पर मेधसाव्रतवाद की बात कही या आमाव्रतवाद चरक ने जो बताया वात व्याधि चिकित्सा में, तो वहां पर लंघन का उन्होंने उसमें उल्लेख किया। इसी लंघन के सिद्धांत को ही उन्होंने दूसरी तरीके से और इसको सामने रखा, और उसको हम प्रयोग में लेते हैं कि लंघन पाचन और दोषावशेषण, ये जो व्याधि की कंडीशन के आधार पर हम 3 तरह के चिकित्सा कर सकते हैं। कि जब दोष ऐसे हैं जिन्हें हम लंघन के द्वारा ही उनका पाचन किया जा सकता है तो लंघन उसमें देना चाहिए, और अगर उनकी थोड़ा दोष वृद्ध है तो लंघन पाचन, और दोषों की स्थिति यह है कि अति वृद्ध है और वो लंघन और लंघन के द्वारा भी बहुत जल्दी या बहुत शीघ्र उनका शमन नहीं किया जा सकता है, तो फिर उन्होंने शोधन के लिए यानी दोषावशेषण के लिए उसमें कहा गया है। और चरक ने ही इस बात को भी कहा कि जो लंघन का सिद्धांत है उसमें उसको 2 तरह से उन्होंने विभाजित कर दिया। एक तो जिसमें कि हम आहार की बात करें, आहार ना लेने की या लघु भोजन की बात करें, और दूसरा जो है वो लंघन है जैसे अद्रव्यभूत लंघन जिसे हम कहेंगे। तो उसमें जो है उन्होंने व्यायाम, आतप, इनकी बात उसमें कही। लंघनम जैसे कि जो 10 प्रकार के लंघन बताए, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने उल्लेख किया कि चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपासा मारुता तपो पाचनान्य उपवासस्य व्यायामश्चेति लंघनम। तो उसमें जो चतुष्प्रकार संशुद्धि यानी 4 प्रकार का जो पंचकर्म के 4 प्रयोग है, वमन, विरेचन, विरोपस्थि और नस्य, ये 4 जो है वो शोधन के लिए उन्होंने प्रयोग में बताया। और लंघन का एक फास्ट कोई मतलब प्रोसीजर है या मेथड है लंघन का, वो शोधन है। शोधन को एज ए फास्ट मेथड ऑफ लंघन के रूप में जो है चरक ने प्रयोग किया कि उसको जो है अगर रोगी में जो है दोषों की वृद्धि है और शीघ्रता से उसको कम करना है और लंघन करना है तो आप लंघन के लिए शोधन का प्रयोग करें। तो शोधन का भी प्रयोग जो है वो चरक विशेषता है कि चरक संहिता की विशेषता ये है कि उन्होंने शोधन के प्रयोग को भी बहुत ही संतुलित तरीके से और बहुत कंडीशनल उसको बताया। हर कंडीशन में और शोधन में भी विविधता लाना कि किस प्रकार के रोग में किस प्रकार के
प्रयोग के द्वारा लंघन किया जाएगा या सेवन किया जाएगा, उसकी उन्होंने उसमें उसको रखा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं जो है बताना चाहूंगा कि जहां भी चिकित्सा सिद्धांतों की बात की है तो वहां पर दोषों को का शमन करने की बात चरक ने की, जिसे हम कहते हैं कि विपरीत चिकित्सा की बात करते हैं, वो भी चरक जो है उसको बहुत ही सिद्धांत के रूप में रखते हैं। दोषानाम आमयानाम च विपरीत गुणे गुणे, उन्होंने ये कहा कि दोष और व्याधि इनके विपरीत जो भी चिकित्सा की जाएगी वही वास्तव में चिकित्सा का सिद्धांत है। चिकित्सा का सिद्धांत क्या है? चरक ने बताया कि जो हमारे निदान है, निदान के विपरीत अगर हम चलते हैं जाते हैं तो वो जो है वो ही चिकित्सा का वास्तविक सिद्धांत है। और ये प्रकृति यानी नेचर भी इस चीज को बताती है। नेचर हमेशा इस चीज को बताती है कि विपरीत का सेवन जो है वो चिकित्सा होती है। जैसा कि कहा भी गया, चरक ने भी और सुश्रुत ने भी सिद्धांत को बताया है कि जिस भी धातु का क्षय होता है या जिस शरीर के उपयोगी तत्वों का शरीर में क्षय होता है, उसकी एक इच्छा शरीर में जागृत होती है, उसी तरह की का सेवन करने की जो है एक रोगी में इच्छा होती है। तो वो ये बताता है कि ये एक सिद्धांत है कि विपरीत चिकित्सा यानी कि जिस चीज का क्षय हुआ उसकी पूर्ति करना, उसकी वृद्धि करना, और जो जिसकी वृद्धि हुई है उसका क्षय करना। तो इसीलिए चरक ने सिद्धांत बताया कि शीत के कारण जो व्याधियां हुई हैं उनकी चिकित्सा उष्ण के द्वारा करनी चाहिए, और उष्ण निदानों से जो रोग हुआ है उसकी चिकित्सा शीत से करनी चाहिए। इसी तरह से जो रोग वृक्ष सेवन से हुए हैं, वृक्षता जिनका निदान रहा है, उनकी चिकित्सा स्नेहन के द्वारा करनी है। जिन रोगों का निदान या जिनका लक्षण जो है वो शिथिलता या वहां पर जो है दोषों का या धातुओं का अधिक प्रवाहन है, तो वहां पर जो है स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये विपरीत चिकित्सा, जहाँ पर स्तंभन कारण है वहां पर स्वेदन करना है, और जहाँ पर स्वेदन यानी कि गतिशीलता कारण है वहां पर स्तंभन करना है। तो ये विपरीत चिकित्सा का सिद्धांत चरक का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के साथ और बहुत से इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो चरक ने दिए। एक कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चरक ने कहा अलम ही बलम निग्रहाय च दोषाणाम, दोषों की चिकित्सा करना हमारा उद्देश्य है। तो वो उसके लिए उन्होंने बताया कि शरीर का जो बल है वो पर्याप्त है। बल में ये क्षमता है कि वह अलम ही बलम निग्रहाय च दोषाणाम, ये चरक ने ज्वर की चिकित्सा में इस बात को कहा है। तो अब ये अप्लाई हर जगह होता है कि आपने अगर शरीर में बल की रक्षा की है और शरीर में अगर बल है तो शरीर में धातु साम्य करना बहुत ही जो है सरल रहेगा, और चिकित्सा वो बल स्वाभाविक रूप से उसमें चिकित्सा में सहायक होगा, और वो चिकित्सा के लिए दोषों को सम करने के लिए पर्याप्त है। तो ये सिद्धांत हमको ये बताता है कि जिन भी रोगों में आप रोगों में देखिए, तो रोगों में आप बल की चिकित्सा, बल की पहले तो उसका एनालिसिस करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए रोगी के बल का, और उस बल के जो भी उस बल के घटक हैं जिनके द्वारा वो बल मेंटेन किया जा रहा है उनकी पूर्ति फिर उसमें करनी चाहिए। तो अब जैसे जो आप तस्वीर परीक्षा करते हैं तो उसमें भी उन्होंने बताया कि रोगी के बल के ज्ञान के लिए ही वो तस्वीर परीक्षा बताई गई। तो उनके द्वारा जो है रोगी के बल की परीक्षा करनी चाहिए, और बल के को जो है जो बल की कमी रोगी में हुई है उसको एक सामान्य अवस्था में लाने की कोशिश उसमें करनी चाहिए। तो वो बल किस विधियों से, किन औषधियों से, किस प्रकार के आहार से प्राप्त होगा, वो आहार फिर बाद में उसमें बताए गए। और आप इस चिकित्सा के बारे में आप देखेंगे तो बहुत से रोग हैं जहाँ पर उन्होंने कहा कि रक्तम जीवित स्थिति, यानी रक्त ही वहां पर एक बल के रूप में है और रक्त को जो है वहां पर संरक्षित करना चाहिए। कहीं पर उन्होंने कहा रसजम पुरुषम विद्या,
रसम रक्षेर प्रयत्नतः है, आहार से विहार से इसके जो है रस की रक्षा करनी चाहिए। रस जो है बल के रूप में शरीर में है, रसम रक्षेर प्रयत्नतः। इसी तरह से जो बल के और कारण है उनमें वो कहते हैं कि कहीं पर आपका मल जो है वो भी बल का काम करता है और वो शरीर में रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विडम विडम तस्य ही बलम तस्य ही विडबलम, क्योंकि राजलक्ष्मण ने कहा। तो यानी कि बल को संरक्षित करना, उसकी रक्षा करना, ये चिकित्सा का एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को उन्होंने जगह जगह पर उसको रखा। और अगर आप थोड़ा सा और एनालिसिस हम करेंगे तो पता चलेगा कि हम जो चरक के सिद्धांतों का जब पालन करेंगे तो वात पित्त और कफ में तीनों का महत्व जो है वो बराबर बराबर बताया गया। जहाँ बल की बात होगी वहां बात करेंगे श्लेष्मा की, कि जो अविकृत श्लेष्मा यानी कि शुद्ध कफ जो है वो बल है। जैसे कि चरक ने कहा भी है ना, अविकृतस्तु बलम श्लेष्मा। तो उन्होंने कहा कि बल जो है वो श्लेष्मा जो है बल। इसी तरह से अब जब बात की जाएगी बात की तो वो कहेंगे कि जो है वायु ही ऐसा शरीर में दोष है जो सारे रोगों का कारण है, और वायु का अगर हम शमन करें और वायु का भी नियंत्रण कर लें तो हम सब रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। चरक के चिकित्सा अध्याय 28 में जो है वात व्याधि चिकित्सा का प्रारंभ जब चरक ने किया तो उसमें वो सबसे पहले कहते हैं कि जो वायु है उसकी रक्षा, मतलब उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। और अगर वायु किसी की नियंत्रित है तो वह व्यक्ति 100 वर्ष तक बिना किसी रोग के और वो निरोग रहते हुए जीवित रह सकता है। ऐसा चरक ने जो है चिकित्सा अध्याय के प्रारंभ में ही कहा। अव्याहत गतिर्यस्य यह साथ पूरा श्लोक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर अव्याहत गति उन्होंने बताई कि अव्याहत गति अगर वायु की है तो वह 100 वर्ष तक बिना रोग के जीवित रहे। यानी कि वहां पर सिद्धांत है कि वायु का नियंत्रण करना, वायु को अगर वृद्ध है तो उसका शमन करना, और वायु का क्षय है तो वायु की वृद्धि का उपाय करना। तो ये भी बल की बात चल रही। वायु एक बल के रूप में है तो जहाँ पर कफ जो है बल के रूप में है तो उसको संरक्षित कीजिए, और जहाँ पर जो है बल का कारण अग्नि है, जिसने कहा कि अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गत है, कुपिता कुप्त शुभा शुभानी करोति। तो जो अग्नि है, अब अग्नि पर आप कॉन्सेप्ट देखिए चरक का, तो कहते हैं कि सर्वेशा में दोषाणाम नहीं, उसमें लिखा कि अग्नि पर जो है, अग्नि के बल पर निर्भर है कि दोषों का प्रकोप होना या दोषों का शमन होना जो है वो अग्नि पर निर्भर है। तो अग्निरेव सदा रक्षे निरानानि च वर्जय, तो अग्नि की रक्षा करिए और निरानों का परिवर्जन कीजिए। तो अब अग्नि पर आ जाइए। तो अग्नि के सिद्धांत को कहाँ कहाँ चरक ने अप्लाई किया, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर लंघन का प्रयोग कर रहे हैं तो अग्नि के वर्धन के लिए कर रहे हैं। जहाँ पर आप आम की बात कर रहे हैं बहुत से लोगों की, तो अग्नि वहां पर आवश्यक है, अग्नि को बढ़ाना। जहाँ उदर रोग चिकित्सा में जब जाएंगे और गृहिणी की बात जब होगी तो प्रधान रूप से जो है अग्नि की चिकित्सा पर ही पूरा वह केंद्रित रहेगी चिकित्सा। और अग्नि को उन्होंने वहां पर 4 उसके भेद भी किए, जैसे कि जो गृहिणी चिकित्सा में ही अग्नि के 4 भेद किए, सम अग्नि, विषम अग्नि, मंद अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि। इस तरह से उन्होंने उसके भेद उसमें वहां पर बताया और अग्नि के महत्व को वहां पर उन्होंने बताया। तो ये कुछ मैंने आपको सिद्धांत पर थोड़ा ध्यान आकर्षित किया। एक और आपको सिद्धांत बताया वो है मन।
चरक मन के ऊपर कितना रोगों की चिकित्सा में ध्यान केंद्रित करते हैं। चरक कहते हैं, चरक शरीर स्थान अध्याय 1 का ही हिस्सा है, उसमें है शरीरम सत्वम अनुगृह्यते, सत्वम च शरीरम। शरीर मन का अनुगमन करता है, यानी कि बॉडी फॉलोज माइंड एंड माइंड फॉलोज द बॉडी। शरीरम सत्वम अनुगृह्यते सत्वम शरीरम, यानी कि हमारा शरीर जो है मन का अनुगमन करता है और मन शरीर का अनुगमन करता है। तो आप देखिए यहाँ पर दोषों की बात आएगी, दोषों के वृद्धि होने की बात आएगी, उनके शमन की बात करेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि दोषों की जब वृद्धि होगी तो उसका प्रभाव आपके मन पर होगा और मानसिक जो उसके लक्षण हैं वो आएंगे। और इसी तरह से ये हुआ शरीर का प्रभाव मन पर। दूसरा, अगर मन आपका प्रभावित होता है तो उसके लक्षण जो है शरीर पर प्रकट होंगे। वो आपका जो एग्जाम्पल आप देखिए वहां दिया हुआ है, ज्वर में आप देखिए, अब आगंतुक ज्वर में जैसे क्रोध, काम, मत ज्वर, ये सब जो है काम, क्रोध आदि जो है वो सब कारण है उन दोषों को वापस जो है दोषों को वैषम्य करने में मन के भाव कारण होते हैं। लोभ है कफ की वृद्धि का कारण है, क्रोध है पित्त की वृद्धि का कारण है, चरक ने बताया। इसी तरह से जो मन की अस्थिरता है, चंचलता है, वो वात की वृद्धि का कारण है। इसी तरह से अगर शरीर में कोई किसी प्रकार के दोषों की वृद्धि है तो उसका जो है वो मन पर प्रभाव होगा। और इस तरह को अगर अलग अलग रोगों में इस चीज को चिकित्सा सिद्धांत में अगर देखने लगे तो वहां पर आपको हर जगह पर इस तरह का जो है वर्णन मिलेगा कि चिकित्सा में कहाँ जो है उन्होंने मन की स्थिति के आधार पर, यानी कि मेंटल स्टेट के आधार पर जो है चिकित्सा को महत्व दिया है। और उसमें राजक्षमा में देखिए आप, वह कहते हैं कि इस तरह के वातावरण में व्यक्ति का रहना, सुहृद अच्छे मित्रों के बीच में रहना, वो जो है आपके बल को बढ़ाएगा। राजक्षमा की चिकित्सा में उन्होंने बताया। इसी तरह से जहां पर अन्य रोगों में भी उन्होंने जो है मन की चिकित्सा को बताया, जैसे कि आप लीजिए जहां पर पित्त की वृद्धि है या रक्त की दृष्टि है, वहां पर चरक ने बताया कि मन का शमन आवश्यक है, मन का जो है शांत रहना आवश्यक है। और उसके लिए उन्होंने लिखा, चरक ने लिखा प्रशमम पथ्यानाम, ये चरक ने लिखा कि पथ्यों में श्रेष्ठ क्या है। पथ्यों में श्रेष्ठ बताया उन्होंने कि मन का शांत रहना, ये पथ्यों में नंबर 1 पथ्यों में श्रेष्ठ बताया। तो आप पता देखिए कि चिकित्सा में किस तरह से उसका उपयोग करना है। तो मन का शमन करना यानी कि मन का शांत रहना, आपके पथ्य जब आप किसी रोगी को बताएंगे तो उस पथ्य में सबसे पहला पथ्य तो यही होगा, प्रश्न पथ्यानाम, चरक कहते हैं। तो मन की चिकित्सा करना वो चरक ने अलग अलग रोगों में बताया। चाहे ज्वर को देख लीजिए, रक्तपित्त में देख लीजिए, अन्य जितने भी रोग हैं, वात व्याधि के रोग हैं, उनमें आप देखिए तो जहाँ पर वात का शमन करने की बात करेंगे तो मन की। अब इसी को मॉडर्न मेडिसिन, साइकोसोमेटिक मेडिसिन अब उसको कहा जाता है। मेडिसिन की जगह साइकोसोमेटिक मेडिसिन हर रोगी को, और विदेशों में तो ये ट्रेंड भी है कि हर रोगी को पहले जो है एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना है, उसकी काउंसलिंग करनी, चाहे डिजीज कोई सी भी हो। तो इतना महत्व जो है मन का है, और उसको चरक ने जो है सिद्धांत के रूप में माना है, उसका प्रयोग उसमें किया है। इस पर पूरा अगर चाहें तो पूरा एक रिसर्च हो सकता है, चरक के ऊपर पूरा जो है इसका अध्ययन किया जा सकता है कि कहाँ पर उन्होंने। अब जैसे अब बात पंचकर्म की करें तो पंचकर्म में कहते हैं कि एकाग्र मनसा पीतम सम्यक योगाय कल्प।
अगर रोगी में अगर आपको संयोग करना है, समय योग करना है वामन विरेचन वस्ती आदि का, तो पहले जो है उसके मन को शांत करिए, यानी कि मन की एकाग्रता पूर्वक जो है वो औषधि का सेवन करे, उस प्रयोग का सेवन करे। एकाग्र मनसा प्रीतम सम्यक योगाय कल्प, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा। ये बातें मैंने कही मन के आधार पर। अब एक सिद्धांत का देखिए, जितना फोकस अब देखेंगे, संहिता का ही मानी कॉन्सेप्ट चरक सही है कि शोधन करना, शोधन कैसे करना, शोधन के द्वारा चिकित्सा किस प्रकार से संभव होगी, उसके लिए अलग से एक सिद्धि स्थान तो उन्होंने दिया ही है, जिसमें कि शोधन की विधियां, शोधन के प्रयोग, उसके बारे में बताया गया है। और जहाँ चिकित्सा सिद्धांत की बात आप करेंगे, तो चिकित्सा आप जब उठाएंगे, चिकित्सा की बात जब होगी, तो उसमें सबसे पहले तो प्रयोग उसमें आएंगे कि लंघन वगैरह इनका प्रयोग हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो सीधा जो है सिद्धांत है, उनमें शोधन का प्रयोग उसमें लिखा जाए। अगर जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, ज्वर का ही ले लीजिए, तो ज्वर में भी जैसे कफ का उत्क्लेश अगर है रोगी में, तो वहां पर वमन कर्म का, वहां पर वो कहते हैं कि वमन कर्म कराना। इसी तरह से अगर ज्वर जो है वो काफी पुराना है, उसमें विरेचन कर्म वहां पर उनको करना, वस्ती कर्म वहां पर करना। उसका प्रयोग जो है कंडीशन, जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो सिद्धांत में उसको रखते हैं। कुष्ठ रोग की चिकित्सा में देखिए, तो वहां पर आपको अगर कफज कुष्ठ है तो वमन करना है, पित्तज है तो विरेचन करना है, और वातज है तो वातज में वहां पर सिद्धांत बताया कि घृतपान वहां पर चिकित्सा का सिद्धांत। तो उस पर भी हम आएंगे। एक सिद्धांत जो कि स्नेह सिद्धांत आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चरक का सिद्धांत है, और उस पर आप एक तरह से कहेंगे कि उन्होंने स्नेह को एज ए व्हीकल भी प्रयोग किया चरक। जहाँ भी आप औषधियों की बात करेंगे, तो सिद्ध घृत की बात जब आएगी, तो उसमें चरक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। चरक ने ही जो है सारे सिद्ध घृतों का प्रयोग बताया। जिन जिन औषधियों का प्रयोग उस रोग में करना चाहिए, उनसे जो है उन औषधियों से सिद्ध घृत का प्रयोग चरक ने बताया। अब वो इस वजह से भी शायद किया होगा कि रेडी टू यूज कोई मेडिसिन अगर है जो शेल्फ में रखी रहे, तो वो एक सिद्ध घृत के रूप में हमारे को अवेलेबल हो सकती है। तो एज ए व्हीकल भी वो घृत, सिद्ध घृत हम उन रोगों में प्रयोग करेंगे। तो शमन औषधियों के रूप में चरक ने जो जितने भी घृत का प्रयोग बताया, वो शमन औषधि के रूप में बताया। उनको शमन औषधि के रूप में प्रयोग करना है। स्नेहन के लिए उनका प्रयोग नहीं बताया, वो शमन के रूप में ही बताया। तो आप सिद्ध घृतों का प्रयोग देख लीजिए। इसी तरह से सिद्ध तेल का भी इंटरनल प्रयोग जो है वो चरक ने बताया, सिद्ध तेलों का प्रयोग। तो वो भी औषधियों का रेडी टू यूज मेडिसिन है। और दूसरा जो कि बहुत समय तक जिनका कि हम यूज कर सकते हैं और खराब ना हो, तो इस तरह की एक कल्पना का प्रयोग वहाँ किया गया है। क्वाथ का प्रयोग में भी सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग जो है आप देखिए क्वाथ का प्रयोग चरक का है। और क्वाथ ऐसी कल्पना है जो सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे ज्यादा शीघ्र प्रभाव करने वाली जो कोई कल्पना है, तो वो है क्वाथ का प्रयोग बताया। तो ये सब सिद्धांत कहीं कहीं हैं, और उन पर हम जब दृष्टिपात करते हैं, चरक को जब उठाते हैं, तो उनमें बहुत से इस तरह के, ये तो मैंने एक मोटे मोटे जो है ऊपरी इन सिद्धांतों को किस तरह से हमने देख सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा की। तो समय में समझता हूँ कि पर्याप्त हो गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को, विशेष रूप से हमारे गुरु जी कहेंगे तो हमारे हमसे उनका काफी सीखने को मिला है, डॉक्टर अग्निहोत्री जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर दिया इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही विस्तार से आपने पूरी चर्चा की, और एक सिद्ध चिकित्सक होने की तरह आपने पूरा दिया, बहुत ही सरल भाषा में। आपने शुरुआत कर दी थी षड उपक्रम के द्वारा। लास्ट सेशन इज ओपन सर, प्लीज काइंडली कोऑर्डिनेट। ठीक है सर। तो आपने चर्चा कर दी कि पहले तो षड उपक्रम को देखते हुए करेंगे, तो हमारा धातु साम्य में आसानी से प्राप्त होगा। और वहां से चलते चलते आपने सभी बलों की चर्चा की, और फिर बातचीत कफ तीनों के रेफरेंस में स्थापित किया
कि कब कौन सी स्थिति होगी। और गृहिणी के रोग में भी आपने बताया कि हम चतुष्ट प्रकार की अग्नि का वहाँ पर विधि वर्णीकरण किया गया है। अंततः आपने फिर अपने पंचकर्म के विशेष सिद्धांतों पर चर्चा किया और ये बतला दिया कि हम सिद्ध तेल, सिद्ध घृत, सिद्ध क्वाथ ये सब इस्तेमाल करते हैं। और बड़े प्यार से आपने जो अंतिम एक वाणी दी कि हम मन को भी यहाँ पर उपक्रम किया गया है। मन के निरूपण में आपने वास्तविक कफ के क्रम में बात रखी है। बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में बताया गया है कि जितने हमारे मनोवेग होते हैं, काम, क्रोध, मोह, ममता, ईर्ष्या, जुगुप्सा, इसके द्वारा भी कहीं सन्निपात होता है, तो कहीं तो दद्रु होता है, कहीं कंडु होता है। ईर्ष्या द्वारा बड़ी अच्छी चर्चा की थी। यद्यपि रामचरितमानस बाद का ग्रंथ है, चरक संहिता बहुत पुरानी है, लेकिन एक ही भाव दिखाई पड़ा। तो मनस रोगों पर भी हमें मानसिक संतुलन, आपने कहा ना प्रशमन, पहले से हम प्रशम रखते तो सबसे बड़ा उपक्रम बताया। बहुत ही सारगर्भित चर्चा रही। अब इसके साथ ही निर्देश मिला है कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो ओपन सेशन में चला गया। आज के हमारे दोनों अतिथि वक्ताओं ने अपनी प्रस्तुतियां दे दी हैं। आपका लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस क्रम में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जो हमारी आज के पार्टिसिपेंट्स आते हैं। कुछ तो हमें लगता है प्रोफेसर उत्तम शर्मा जी के छात्र लोग भी जुड़े हैं हमारे पीजी के, लेकिन साथ साथ जैसे वैद्य दीपक हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, प्रियांश जी हैं, किरण पाटिल साहब तो हमारे प्रतिदिन के साथी हैं, डॉक्टर रंजीता चौहान जी हैं। तो मेरा तो सबसे निवेदन है कि समय को बचाते हुए कि आज हमें जल्दी खत्म करनी है, क्योंकि प्रोफेसर पवन शर्मा जी की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, वो बोर्डिंग में क्यू में लगे हैं। तो जिनको भी इस आज की चरक सिद्धांत चिकित्सा में अपने विचार देने हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो अगर हैंड रेस करेंगे तो उनको नाम से आदर से उनको 15 मिनट बाकी हैं सर। 15 मिनट बाद जी 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 यदि मैं बंद कर पाऊँ जूम मीटिंग, तो जो भी होस्ट होगा वो जो हो वो एंड कर दे मीटिंग को, जूम को, क्योंकि मेरा 7:25 पे फ्लाइट उड़ जाएगी। मैं अभी विद इन 10 मिनट्स खत्म कर रहा हूँ, विद इन 5-10 मिनट्स में, क्योंकि अगर और विचार नहीं आते हैं तो मैं आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण द्विवेदी जी से ही निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वचन देखिए आज की स्थिति को देखते हुए जल्दी से हमारा आज की इस वेबिनार के टॉपिक को अपना आशीर्वचन दे दें, जिससे कि समय से ये हम आज की पूर्ति कर सकें। आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, शुभ संध्या सभी विद्वान वृंदों को अभिवादन। और आज के वेबिनार में जो दो मुख्य वक्ता थे, एक ने चरक संहिता में उपलब्ध शल्य साहित्य और उसके व्यवहार पर चर्चा करी श्रीलंका से विदुषी ने, और साथ में हमारे उत्तम शर्मा जी ने जो उद्बोधन दिया चरक संहिता से ज्वर चिकित्सा को बताते हुए, और अग्निबल और साथ में लंघन का महत्व बता करके, तो सारगर भी था और व्यवहारिक भी था। हम लोग जब चिकित्सा मार्ग से हट करके कुछ काम करते हैं तो थोड़ा सा परिणाम आने में दिक्कत होती है, और यदि चिकित्सा सूत्र को फॉलो करेंगे तो परिणाम निश्चित ही लाभकारी होते हैं, उपयोगी हैं, और वो व्यवहारिक प्रक्रिया है सिद्धांतों का। और मुख्य उद्देश्य भी वही है कि साहब एप्लाइड एस्पेक्ट में हम चरक संहिता को कैसे समझें, उसी आधार पे उत्तम शर्मा जी ने कुछ बताया। और जैसा उन्होंने स्वयं कहा था कि ये सुपरफिशियल रूप में है, और जितना अंतर गहराई में जाएंगे कुछ नए नए ज्ञान और स्पष्टीकरण हमको होते हैं। इतना ही कह करके मैं सभी विद्वानों को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने समय की मर्यादा को देखते हुए और उसकी कुछ आज की स्थिति को देखते हुए आपने समापन दिया, आपको बहुत बहुत आभार। एक बार मैं पुनः आज के दोनों ही अतिथि वक्ताओं प्रोफेसर प्रियदर्शनी गुणवत्नी जी का कल श्रीलंका से जो पधारी हैं, और प्रोफेसर उत्तम शर्मा जी के आज के प्रबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी उपस्थित जुड़े हुए आज के हमारे सभी पार्टिसिपेंट आदरणीय लोगों का बहुत बहुत आभार। और जो लोग हमारे वेबसाइट पर देखेंगे यूट्यूब का वार्ता करें, उनका बहुत बहुत आभार। इन शब्दों के साथ में प्रोफेसर पवन शर्मा जी को पुनः एक बार आज के कार्यक्रम के समापन के लिए औपचारिक रूप से निवेदन करते हैं। प्रोफेसर पवन शर्मा जी, यदि आप आवाज सुन पा रहे हैं तो आप इसका समापन करने की बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। कल जैसा संडे है तो कल यदि आप लोग आदेश करेंगे तो दोपहर में हम 2 बजे रख सकते हैं, यदि आप आदेश करें, क्योंकि संडे शाम को सभी घूमने जाना चाहते हैं। तो जैसा आप आदेश करें 2 बजे आप पहले अपने स्थान पे पहुंच के व्यवस्थित हो जाइए। आप सुबह की वो मेरे ऊपर नहीं है ना सर, वो तो लाइन चलने के ऊपर ही। तो वही तो सुबह आप बताएंगे, उसी के अनुसार व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। गुड नाइट सभी को प्रणाम। गुड नाइट, शुभ रात्रि सर। नमस्कार। शुभ रात्रि।